हेलो एवरीवन। बात करेंगे सीटेट के पार्ट 4 के आंसर की के बारे में, जो 7 फ़रवरी को 2026 को हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था ये एग्ज़ाम। इसके पार्ट 4 के बारे में, आंसर की के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज 1 इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन, delaying the learning of language in the early years make it more difficult for children to acquire new languages. Reason: early years of children are sensitive periods for language acquisition. सही आंसर है इसका ऑप्शन 4. Both A and R are true and R is a correct explanation of A. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 92. One of the key principles of National Curriculum Framework for Foundational Stage 2022 with respect to multilingualism is option 2 is right option. Multilingualism has both cognitive and social कल्चरल बेनिफिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम ऑफ द स्पीच कम्युनिटीज टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज coexist each with a distinct range of social function. This situation is described as, right option is diglossia. Next question is 94. Children work in pairs. A text is divided in half. One child reads their text for the partner, which the other child writes. Two of them work out the whole text. This activity is called, right answer is second option, partial dictation. Next question is 95. Which of the following statement is not true of study about the literary text in language classroom? Option 4 is correct answer. Literary text should be used to teach grammar. Now, next question is 96. Naveen of class 6 struggle with reading. The next, the teacher gives him simple text to the read. She conducts shared reading session for him. The support provided by the teacher is called, right option is 1, scaffolding. Now next question is 97. Which approach to language teaching learning believes language is a habit? Right answer is option 4, audiolingualism. Let's go with next question. Now 98 question is, a child reads an unseen passage for which he is expected to answer the question that follow. This type of reading is referred to as, correct answer is scanning, option 4. Now question 19. Teacher shows 5 pictures to the students and asks them to write story based on these pictures. Correct answer is option 3, creative writing. Next question is 100. Which of the following is the characteristics of performance-based assessment in language? Correct option is option 3, contextualized communicative tasks. Now next question is, read the following statements. Assertion है, reading is a just to understand, letter sound relationship and pronounce the words correctly. Reading is a decoding symbols to arrive at meaning. Right option है option 2. B is true but E is false.
Next question is 102. A teacher has to assess listening skills of her students. Which of the following activities can she select as a listening assessment? Right option is 1. Teacher tells a story and after that asks comprehension based questions. Now, next question is 103. Fill in the blanks is concerned with the aspects of meaning in language. Right answer is semantics, option 1. Question is 104. Which of the following is not the principles of language learning? Right answer is option 3. Language is learned through memorization of structures, rules of grammar. Next question is 105. A teacher of grade 6 write a word in the center of the blackboard and ask the learners to brainstorm all the words they can think of which are connected to the central word. Right answer is option 1, improving vocabulary of learner. Now, next question is 106. The speaker the speaker's bird can do a number of things. It is because option 2 is correct answer. The bird is free. 107 question. The caged bird is described as a crippled thing because option 1 is the correct answer. It is not free to fly and soar. 108 question. Which poetic device is used in the expression sorrowful wings? Correct answer is option 2, transferred epithet. Next question is 109. What is the theme of the poem? Right answer is bird living in the open enjoy their lives. Now, next question is but my bird sings denotes the right answer is option 1. My bird is free. Next question is 111. The speaker says that the caged bird flutters its sorrowful wings. The wings are being described as sorrowful because option 1 are correct. The bird is sad as it is caged. Now, next question is a large passage. हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पर. Yes, 112. क्वेश्चन है the movement towards health clubs is yet to gain momentum in India signifies that option 2 is correct answer. Health club in Indian companies have not yet become popular. Next question is 113. What is directly affected by physical health? Option 4 is correct answer, mind. Now next question is 114. Which of the following words is opposite in meaning to the word nominal? Correct answer is substantial. Next question is 115. Which one of the following word is nearest in the meaning of prerequisite? सही आंसर है ऑप्शन 1, required. Now question is 116. Which part of speech is underlined word? Japanese companies particularly excel in this. Right answer is option 1, adverb. Next question is 117. Identify the clause in the underlined part of the sentence. It is esteemed that 20,000 American firms have established in-house health clubs. Right option is option 3, principal clause.
Next question is 118. What is the prerequisite for high effect and good quality work? Right option is option 3, sound mind in the sound body. Next question is 119. Japanese companies ensure loyalty and motivation by making their workers start off the day with exercising. Right option is 4. Now, last question of this part 120. Why do companies have health clubs? Right option is 2. They help in better efficiency and high productivity of the workers. अब चलते हैं इसके अगले भाग पर, इसी भाग के दूसरे हिस्से पर। इसमें भी 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन है। ये भी भाग 4 का भाग 1 भाषा 1 है, हिंदी। इसमें दोनों भाषाएं थी, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक विकल्प चुनना था। तो अभी हमने इंग्लिश के प्रश्नों की आंसर की बात की है, अब हम बात करेंगे हिंदी के प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। कारण बच्चों के शुरुआती भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है 92। बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 93। कुछ वाक समुदायों के एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान है, सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन 2। द्विभाषा रूपिता, डिस्लेक्सिया। अगला प्रश्न है 94। बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री को 2 खंडों विभाजित कर लिया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? सही उत्तर है आंशिक श्रुतलेख, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है 95। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन 4। साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्र का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा? विकल्प 1 सही उत्तर है, अवलंबन स्कैफोल्डिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 97। भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? सही उत्तर है विकल्प 4 श्रव्य भाषावाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 98। एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चे को इसे पढ़कर उस गद्य खंड के लिए नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है विकल्प 4 बारीकी के पठन, स्कैनिंग। अगला प्रश्न है 99। एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? सही उत्तर है विकल्प 3 रचनात्मक लेखन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 100। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? सही उत्तर है विकल्प 3 संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 101। पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना है। सही विकल्प चुनना है इनमें से। सही उत्तर है
विकल्प 2 बी सही है लेकिन ए गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 102। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है? सही उत्तर है विकल्प 1, अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 103। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अर्थ के पहलुओं से संबंधित है? इसका विकल्प 1 सही उत्तर हो जाएगा, अर्थग्राम। अगला प्रश्न है 104। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा। भाषा व्याकरण की संरचना नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 105। कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे इस शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक सेकेंड। इसका सही उत्तर है विकल्प 1, शिक्षार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 106। छा रहा चतुर्वेदिक विकट धूम का आशय है चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है। सही उत्तर है विकल्प 2। अगला प्रश्न 107। बचाव त्राण कहाँ है? विकल्प 1 सही उत्तर है, कोमल किरण के जूझने में। प्रश्न 108। नागों का गुण नहीं है। सही उत्तर है विकल्प 2 घुमक्कड़ होना। 109 प्रश्न है, भिन्न शब्द चुनिए। सही उत्तर है विकल्प 1 कुटिल। अगला प्रश्न है 110। हो अधीर मत मानव ते में अलंकार कौन सा है? सही उत्तर है मानवीकरण। 111। प्रश्न कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है? सही उत्तर है विकल्प 3 क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 112। लोकशाला के संदर्भ में किस बात की ज़रूरत नहीं है? सही उत्तर है विकल्प 2 लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की। प्रश्न 113। लोकशालाओं में क्या सीखने को मिलेगा? पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान। विकल्प 1 सही उत्तर है। प्रश्न 114। गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। प्रश्न विकल्प 4 सही उत्तर है, वयोवृद्ध वैज्ञानिक। अगला प्रश्न 115। भिन्न शब्द पहचानिए। सही उत्तर है विकल्प 2 साहित्य। अगला प्रश्न है कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है। विकल्प 3 सही उत्तर है, आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग। 117 प्रश्न लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद है। लोक प्लस उन्मुखी। विकल्प 2 सही उत्तर है। 118 प्रश्न है कि परंपरा का वर्णन नहीं है। लोकगीत। विकल्प 2 सही उत्तर है। 119 प्रश्न मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 3 विकल्प 3 है सही उत्तर, किताबों की ज़रूरत होना। अंतिम प्रश्न है इस भाग का 120। लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है, यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देती थी। प्रश्न विकल्प 4। यह भाग यहीं समाप्त होता है। बाकी सभी भाग की वीडियो भी लेकर हम जल्दी आपके लिए उपलब्ध होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।